بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ ہم آپ کے لیے کتاب لائے ہیں مستانی، آواز منتہا یوسف، مصنف محمد مونس خان۔ یہ کتاب بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ اس کے اسپانسر ہیں علی رضا۔ یہ کتاب 200 صفحات پر مبنی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7 صفحہ نمبر 108۔ ریل کے ذریعے میر پور خاص پہنچ جائیں گے، لیکن کیا ہم وقت پر پہنچ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ جب ہم سینٹرل جیل کے سامنے پہنچے تو رات کی سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور سڑک کے دونوں کنارے لگے ہوئے برقی قمقمے روشن ہو چکے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس زمانے میں ہیرا آباد میں بھی وہ چہل پہل نہیں تھی۔ مستانی نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی، اسے تانگے والے کی تلاش تھی، لیکن سڑک بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ البتہ اکا دکا آ جا رہے تھے۔ ابھی عشاء میں دیر ہے، مستانی مجھ سے بولی۔ آؤ مارکیٹ تک چلتے ہیں، جہاں سے اسٹیشن کے لیے تانگا جلد ہی مل جائے گا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ وہ پھر مارکیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر بولی، جو آج بھی جیل روڈ کہلاتی تھی۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے سر جھکا کے ہیرا پاس سے گزر رہے تھے۔ عورت کے بہروپ میں مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ دور ہی چلے ہوں گے کہ مستانی نے میرا دانا ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے غیر متوقع رویے پر میں چونکا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا میرا ہاتھ جیسے مستانی نے نہیں پکڑ رکھا، بلکہ کسی آئینی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے۔ میں نے بے بسی سے مستانی کی طرف دیکھا، مسکراتی ہوئی گردن جھکائے چل رہی تھی۔ پھر مجھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اذان سنائی دینے لگی۔ اوہ، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے چڑھ کر کہا، اور ہم ابھی مارکیٹ تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ مستانی نے کوئی جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں یہ دیکھنے کی خاطر کہ ابھی مارکیٹ کتنی دور ہے، اوپر گردن اٹھائی، لیکن وہاں تو دور دور تک مارکیٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ہم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے جس کے آخری مکان کے دروازے پر جشن عید میلاد النبی کا برقی بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو کیا ہم میر پور خاص پہنچ گئے؟ میں نے مائنہ خیز نظروں سے مستانی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر نہایت آہستہ سے بولی، اس محفل کا انتظام خواتین نے کیا ہے، اور خواتین توہمات پر زیادہ یقین رکھتی ہیں، لہذا یہاں کوئی بھی بات دیکھو تو کوئی غیر متوقع حرکت نہ کرنا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی، اور پھر ہم دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ مکان کے صدر دروازے پر ایک جاذب نظر ادھیڑ عمر عورت نے مستانی کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، پھر اس کمرے تک چھوڑنے گئی جس میں عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ کافی بڑا سا ہال تھا جس میں نہایت خوشنما دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ہال کے آخری سرے پر زمین سے قدرے 1 فٹ بلند اسٹیج بنا ہوا تھا، جس کے کونوں پر زوبان سنگ رہے تھے، اور اس کی مسحور کن خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ جس وقت مستانی کے ساتھ اندر داخل ہوا تو پورا ہال عورتوں سے بھرا ہوا تھا، اور سب کی سب حسب عادت نجی نوعیت کی باتوں میں مصروف تھیں۔ مستانی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، یک بارگی سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ سب کی سب خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور کیوں نہ دیکھتی، گلاب کی خوشبو نے اس کے دماغوں کو معطر کر دیا تھا۔ مستانی سب کے درمیان سے نہایت ہی پروقار انداز میں گزرتی ہوئی چبوترے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مستانی کے بیٹھتے ہی عورتیں پھر باتوں میں مشغول ہو گئیں، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے مستانی کو بھی چور نظروں سے
देखती रहती थी। जानते हो ये मकान किसका है? मस्तानी ने निहायत ही धीमी आवाज में मुझसे पूछा। मैंने नफी के अंदाज में गर्दन हिला दी। ये एक हिंदू तवाइफ का मकान है, मस्तानी ने बताया। वो जिस दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया था इसका नाम लैलावती था, लेकिन अब वो खैरुन्निसा है। तो क्या वो मुसलमान हो गई? मैंने पूछा। हाँ, ये इस पर अल्लाह की रहमत है, मस्तानी बोली। अब वो न सिर्फ मुसलमान हो चुकी है बल्कि अपने गुनाह आलू जिंदगी से भी ताइब हो चुकी है और अब इश्क़ रसूल में मगन जिंदगी गुजार रही है। इसके साथ ही मस्तानी ने मुझे आंख से इशारा किया। मैंने देखा दरवाजे के ऐन दरमियान में एक 16-17 साल लड़की सबका जायजा ले रही है, जैसे से किसी की तलाश हो। इसके मासूम हुस्न से मुतासिर हुआ बगैर नहीं रह सका। खैरुन्निसा की बेटी मेहरुन्निसा है, मस्तानी ने मुझे बताया। दोनों माँ बेटियां निहायत ही पाक साफ जिंदगी गुजार रही हैं। इस लड़की को कुरान की तालीम मैं दे रही हूँ। मस्तानी के आखिरी जुमले पर मैं चौंक उठा और हैरत से पूछा, तुम हर रोज यहाँ आती हो? मस्तानी ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेहरुन्निसा ने मस्तानी को देख लिया था, लिहाजा वो निहायत तेजी से इसके करीब आई और सलाम करने के बाद गर्दन झुकाकर बैठ गई। मस्तानी ने इसके सर पर हाथ फेरकर दुआ दी। इतने में खैरुन्निसा ने महफिल मिलाद शुरू किए जाने का ऐलान किया। जो औरतें जो कि अभी तक गोल बनाए बैठी बातें कर रही थी, संभल संभल कर स्टेज के रुख होकर बैठ गईं। मस्तानी अपना गरारा समेटती हुई स्टेज पर आई। इसने अपने दुपट्टे को सर पर इस तरह से ओढ़ लिया तमाम बाल और जिस्म छुप गया। इसके बाद इसने निहायत संजीदगी से कहा, मेरी बहनों, आप सबको मालूम है ये महफिल किसकी शान में मुनक्किद की गई है, लिहाजा मेरी इन तमाम बहनों से जो के निस्वार इस्तेमाल करती हैं या बीड़ी पीती हैं, गुजारिश है कि वो अब जब तक महफिल खत्म न हो जाए किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें। ख्याल रहे अंदरूनी सिंध खवातीन निस्वार और बीड़ी का इस्तेमाल कसरत से करती थीं। इसके बाद वो लम्हे भर को रुकी जैसे वो अपनी हिदायत का जायजा ले रही हो। फिर इसने महफिल मिलाद का आगाज करते हुए तिलावत कुरान पाक के लिए मेहरुन्निसा का नाम पुकारा। मेहरुन्निसा की आवाज और कुरान के अल्फाज, इन दोनों ने ऐसा समा बांधा कि महफिल में सन्नाटा छा गया और माहौल सहर ज़दा सा होकर रह गया। तिलावत कुरान पाक के खत्म होते ही खवातीन इस तरह चौकी जैसे ख्वाब से बेदार हो गई हों। मस्तानी ने सबसे बड़े दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर सीरत नबी के सिलसिले में अपनी तकरीर का आगाज इस तरह किया। मोअज़्ज़िज़ खवातीन, आपको मालूम है आज से चंद साल कब्ल इस जगह ईद मिलादुन नबी मुनक्किद होती है, जिसमें नबी करीम की हुजूर नजराना अकीदत पेश किया जाता है। आज खैरुन्निसा जो मेहरुन्निसा की ख्वाहिश है, मुझे ये सादत हासिल हो रही है कि इस महफिल के शुरका से खिताब करूं। मेरी बहनों, इस महफिल का मकसद ये नहीं कि नबी करीम के हुजूर में नजराना अकीदत इनके मौज़ों को बयान करके पेश करें, बल्कि हमारा सही और हकीकी नजराना अकीदत यह है कि हम अपने नबी के हुक्म पर अमल करें, इनके अस्वाए हसना को दिल से अपनाएं और वो सब करें जो नबी ने हमारे लिए खुद करके दिखाया। आज से पहले जितनी भी महफिलें हुई हैं, इनमें मिलाद पढ़ने वालों ने वही कुछ पढ़ा जो लिखा हुआ था, और लिखने वालों ने जो कुछ भी लिखा अपने जज्बा मोहब्बत और अकीदत की बिना पर लिखा, जिसके नतीजे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नबी करीम से सारी दिलचस्पी हुसूल सवाब के लिए करते हैं। इस सिलसिले में निहायत ही धूम से महफिलें सजाई जाती हैं। फिर मुकर्रिर अहले मजलिस को नबी करीम के बारे में निहायत पुरस्रार और मुतय्यर कर देने वाला वाक़या सुनाता है। याद रखिए, वो उंगली उठाकर बोली, इंसान की ये फितरत है कि वो किसी भी नजरिए को अपनाने से पहले इसके मुबल्लग के बारे में जानना चाहता है और फिर इसके जहन में जो भी मुबल्लग का तसव्वुर
समा जाता है वो वैसे ही नजरिए को अपना लेता है। मेरी बहनों, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, नौह इंसानी में नबी करीम के रूहानी अखलाकी दर्जा नहायत बुलंद है। वहाँ मौजज़े हैं और इनके दरबार में फरिश्ते भी हरकत करते नजर आते हैं। वो हस्ती इतनी पाक है कि अल्लाह भी इस पाकीज़ा हस्ती पर दुरूद और सलाम भेजता है। नबी करीम की हयात तैयबा मुसलमानों के लिए अस्वे हसना है। हम हजूर अकरम की हयात तैयबा से अज़्म व हिम्मत का सबक हासिल कर सकते हैं। हम हजूर की सीरत से पाक फर्ज शनासी और इंसानियत का जज्बा अक्स कर सकते हैं। मेरी बहनों, हम अगर अपने प्यारे नबी के मुकद्दस किरदार को सिर्फ मौजज़ा समझने लगेंगे तो फिर बताओ हम मिट्टी के बने हुए इंसानों के लिए क्या रह जाता है। बताओ मिट्टी के बने हुए इंसान इनके अमल को किस तरह मशाल राह बनाएंगे। ये भी बताओ कि हम सुन्नत नबी पर किस तरह अमल पैरा होंगे। इतना कहने के बाद इतने हाजिरीन ने मजलिस पर एक नजर डाली और फिर इसी जज्बे से बोली, हम समझते हैं कि खाक के पुतले नूर की पैरवी नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम अपने नबी की पाकीज़ा जिंदगी को मौजज़ा समझकर इससे किनारा कश हो चुके हैं। हालांकि नबी की जिंदगी के बारे में यह मुसद्दक़ा हकीकत है कि वो ऐन कुरान के मुताबिक और अहकाम खुदावंदी के ताबे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मुकम्मल इंसान की जिंदगी थी। याद रखो, तारीख इस बात की गवाह है कि जो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उसे भी अपनी जिंदगी किसी भी मामले में किसी दूसरे के पास हिदायत के लिए नहीं जाना पड़ा, क्योंकि आप में तमाम इंसानी खुसूसियात बदलचे अतम मौजूद थी जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका महल के मुताबिक काम में लाते थे। अव्वल दौर के मुसलमान का आज के दौर के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है कि इन्होंने इस अजीम हस्ती की जिंदगी को इस तरह से महफूज कर लिया कि कोई गोशा इंसानी आग से ओझल नहीं हो पाता। और जब इतना सच और सही है कि गैर मुस्लिम तक अंगिश नुमाई करने से आजिज है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। नबी करीम के हयात तैयबा सूरज की मानिंद है जिसकी रोशनी हर शय पर पड़ रही है और हक के मुतलाशी इस रोशनी से सिराते मुस्तकीम की राह पाते हैं। हजरत की जिंदगी आज भी रोज़े अव्वल की तरह रोशन है, जिस तरह कुरान आज भी रोज़े अव्वल की तरह मुस्तनद है। मेरी बहनों, अगर हमें अपने नबी करीम से सच्ची मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि सच्चे आशिक की तरह अपने महबूब पैगंबर के हाल अमल को जुज़्व अमल बना लें। अगर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत है तो हमें आज भी इस बात का अहद करना चाहिए कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर अमल करेंगे। हमारा सच्चा और सही नजराना हकीकत यही है कि हम इस दीन के अस्वे हसना पर अमल करें। याद रखिए, मस्तानी ने निहायती जोश से कहा, रसूल की इत्बा खुदा से मोहब्बत का सबूत है। इसके साथ ही पूरे हाल में हिना की खुशबू फैल गई और रोशनी के 2-3 धमाके हुए। मस्तानी ने फौरन ही अपनी तकरीर रोक दी। खवातीन से कहा, दुरूद शरीफ का विर्द शुरू करें। पूरा हाल दुरूद शरीफ की सहर अंगेज आवाज से गूंजने लगा। मस्तानी झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरे हाल पर साया रहमत मुहित है, हर तरफ नूर ही नूर था। फिर मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ने में ऐसा मऊ हुआ कि मुझे अपना होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं कोठरी में मुसल्ले पर बैठा हुआ था और फजर की अजान हो रही थी। मैंने गर्दन उठाकर देखा, मस्तानी वही लंबा सा कुर्ता पहने कोने में बैठी चाय बना रही थी। कपड़े तब्दील करके चाय पी लो, मुझसे मुखातिब हुई। मैं अपनी जगह से उठा, पलंग के पास आ गया। मेरे पुराने कपड़े मौजूद थे। मैंने कपड़े तब्दील किए, फिर मस्तानी के पास आकर बैठ गया। लो चाय पियो। मस्तानी ने एक प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने प्याला इसके हाथ से ले लिया और मायने खेज नजरों से देखते हुए बोला, मुझे 2 बातों की जुस्तजू है।
तुम्हारे पास नए कपड़ों का जोड़ा कहाँ से आया और बगैर किसी वसीले के मीरपुर खास कैसे पहुंच गए और वापस भी आ गए। मेरी बात सुनकर मस्तानी मुस्कुराई और फिर चाय का घूंट लेकर बोली, वक्त और फासला सब कुछ इंसान के ताबे है खान। कुरान के मुताबिक हक़ ताला ने हमें शम्स व कमर और जो समाज सबका हाकिम बना दिया है। यही वजह है कि इंसान जमीन पर अपना खलीफा बनाया हुआ है। मैंने चाय का घूंट हलक से उतारते हुए इकरार किया। खान, तुम्हारी नजर इतनी वसी हो चुकी है कि तुम मादे के अंदर झांक सकते हो। जमीन और आसमान तुम्हारे सामने खुली किताब के मानंद है। तुम खुद सोचो इसका तरीका क्या हो सकता है। मस्तानी ने इतना कहा और इत्मीनान से चाय पीने लगी। मस्तानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। यह हकीकत है कि मेरी नजर वसी हो चुकी थी। मैं मादी अशिया के अंदर झांक सकता था, लेकिन इनके तसर्रुफ का तरीका क्या है मुझे मालूम नहीं था। मैं सोच में डूबा देखकर वो समझाते हुए बोली, जब हक़ ताला वसाइल के बगैर हाकिम है तो इसका नायब भी वसाइल का मोहताज नहीं रह सकता, क्योंकि इसका नायब इस हकीकत से आगाह होता है कि कायनात का बातिन खुदावंद है। इसी वजह से इसका नायब भी कायनात में तसर्रुफ कर सकता है। लेकिन किस तरह मुमकिन है? मैंने पूछा। सब कुछ मुमकिन है खान। वो चाय का प्याला लकड़ी के बोसीदा संदूक पर रखकर बोली, जब कोई इंसान हक़ ताला का तसव्वुर करता है तो हक़ ताला इसकी आंख का इदराक बन जाता है, क्योंकि वही जाहिर है, वही बातिन है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। फिर वो उंगली उठाकर बोली, जब तुम हक अल्लाह या अल्लाहू का विर्द लगाते हो तो तुम्हारा जहन और आंख दोनों का मरकज हक़ ताला होता है, और इंसान के पास यही वो दो ऐसे वसीले हैं जिनकी बदौलत नूर इलाही का दीदार किया जा सकता है। और अगर इसी कुव्वत को ज्यादा ओढ़ लिया जाए तो इंसान के ताबे हर शय हो सकती है। जमाना और वक्त इसके जहन की हरकत से बदल सकता है। और इस कुव्वत को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? मैंने बड़े ही शौक से पूछा। इस कुव्वत को बढ़ाने की खातिर इंसान को मादे से निजात हासिल करना पड़ती है। मस्तानी ने जवाब दिया। मादे से निजात हासिल करना क्या मतलब? मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा। जिसे मादा है और मादा वजन रखता है, इसने मुस्कुराकर कहा, जबकि हर शय का बातिन नूर है, और इस तरह नूर पर हुक्म चलाने की खातिर ही नूर दरकार होता है, क्योंकि नूर लतीफ होता है। लिहाजा जरूरी है कि इंसान इस नूर की खातिर जिस्म से निजात हासिल कर ले, यानी अमर हो जाए। मैंने बेसाख्ता कहा। वो मेरी बात पर खिलखिलाकर हंसी, फिर संजीदगी से बोली, नहीं, बल्कि अपने अंदर पोशीदा नूर पर दस्तरस हासिल कर ले। और जानते हो वो नूर क्या है? ये कहकर वो जवाब तलब नजरों से देखने लगी। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। वो रूह है, इसने बताया। रूह का नाम सुनते ही मेरे दिलो दिमाग में सोया हुआ शौक एक बार फिर बेदार हो गया। मस्तानी लम्हे भर को सुस्ताई, फिर प्यार भरे लहजे में बोली, दरअसल यही शौक तुमको यहाँ लाया था, लेकिन यहाँ आकर तुम दूसरे चक्करों में पड़ गए। ये सब तुम्हारा करम है, मैंने जवाब दिया। हक़ ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कई मदारिज होते हैं, मस्तानी ने बताया, और तुम अब इस मुकाम तक पहुंच गए हो जहां कायनात के राजों से पर्दा उठ जाता है। तुम्हारी बादनी गुफ्तगू वसी हो चुकी है और तुम हर शय के अंदर झांक सकते हो। मैंने इकरार के अंदाज में गर्दन हिलाई और पूछा, रूह क्या है? रूह क्या है? मस्तानी ने अल्फाज को दोहराया, फिर बोली, रूह एक ऐसा राज है जिसके बारे में हक़ ताला ने कुरान में भी खामोश रहने को कहा है, क्योंकि यही इसकी कुदरत का राज है। लेकिन रूह मरकज़े हयात है। मैंने अपनी अकल के मुताबिक कहा, रूह मंबा हयात है। इस लिहाज से वो निहायत कवी है, निहायत ही अहम है, और इसके बारे में इंसान को
बताया जाना चाहिए था। इस बारे में इंसान को जितना बताया जाना चाहिए था हक़ ताला ने बताया है। मस्तानी ने जवाब दिया, वो क्या है? मैंने पूछा। सुनो। वो अपनी जगह से उठकर पलंग की तरफ आते हुए बोली, जब इंसान तख्लीकी मज़ाहिर से गुजरता है तो छठे माह में दाखिल होता है तो इसके जिस्म में रूह दाखिल कर दी जाती है। ये वो वजूद रूह की दलील है, हयात का एहसास है। जिस्म में रूह को दाखिल किए जाने के बाद इस जिस्म को मजीद 3 माह शिकम मादर में परवरिश किया जाता है, जिसका मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं कि रूह जिस्म इंसानी में मुस्तकम हो जाए। फिर वही जिस्म दुनिया में आ जाता है और इस तरह कार इसका यह फरमान पूरा होता है कि हमने इंसान को गोश्त के लुथड़े से पैदा किया। इतना कहकर वो पलंग पर तकिए के सहारे बैठी हुई बोली, जब तक जिस्म ताकतवर रहता है इस वक्त तक रूह का जिस्म से ताल्लुक रहता है, लेकिन जब जिस्म अपनी तबई उम्र को पहुंच जाता है तो रूह जिस्म का साथ छोड़ देती है, जिसे मौत कहा जाता है। लेकिन वो खला में देखते हुए बोली, कुरान में इस जिंदगी के बाद एक और अब्दी जिंदगी का तस्वुर किया गया है जिस पर तमाम मुसलमानों का ईमान है। दरहकीकत इस बात का सबूत है कि रूह कभी फना नहीं होती। इंसानी जिस्म के फना होने के बाद रूह की मौजूदगी की अक्ली दलील है। मैंने पूछा। सुनते रहो। वो दोबारा सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, रूहें क्योंकि जिस्म में एक तवील अरसा गुजारती हैं, लिहाजा जिस्म से निकलने के बाद इनको जिस्मानी खदोखाल के मुताबिक ही आलम बरज़ख में रखा जाता है ताकि क़यामत के दिन इंसाफ करने में आसानी हो। आलम बरज़ख में भी इन रूहों के दर्जात होते हैं। इनमें जिन रूहों के जिस्म अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ दुनिया में काम करते रहते हैं, इनको सबसे कम दर्जे में रखा जाता है क्योंकि वो अपने जिस्मानी आमाल के मुताबिक इतनी भारी और गंदी हो जाती हैं कि दुनिया वहदत की नूरी हुदूद को पार नहीं कर सकती। इससे भी ज्यादा निहायत कम दर्जे की रूहें फजा में भटकती रहती हैं, जिन्हें दुनिया वाले अपने काबू में कर लेते हैं। अब जहां तक रूह की मौजूदगी की अकली सबूत की बात है, वो हंसकर बोली, तो तुम अपनी खालाजाद बहन का हाल देख चुके हो जिसपे हनुमान की रूह मुसल्लत कर दी गई थी, और शाहनो की रूह से भी वाकिफ हो चुके हो। मस्तानी की बात अपनी जगह पर बहुत बड़ी अकली सबूत थी। रूहों की मौजूदगी के जो असबाब बताए थे वो भी काबिल एतबार थे। अब इन रूहों को काबू किस तरह किया जा सकता है, मैं असल मौजू की तरफ आया। इन कम दर्जे की रूहों को काबू में करने का दुनिया के हर मजहब में कोई ना कोई तरीका है, मस्तानी ने सोचते हुए बताया। लेकिन हमारे दीन में सबसे आसान और सहल तरीका है कि कलाम इलाही, जिसे कुरान भी कहा जाता है, हकीकत में अब्दी दुनिया की मुश्तरका जबान है, और इस जबान में वो जुमले मौजूद हैं जिनकी मुसलसल तकरार से कायनात में भटकती हुई किसी भी रूह से राब्ता कायम किया जा सकता है। वो किस तरह से? मैंने ताजुब से पूछा। इसकी मिसाल तुम इस तरह समझ सकते हो, मस्तानी ने तकिए से सर उठाकर कहा, कि हमें दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है इन सब में कुदरत इलाही पोशीदा है, और जो तुम अल्लाह की सदाएं लगाते हो तो इसकी मुसलसल तकरार से हर शय में पोशीदा नूर इलाही आया होने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह मुसलसल तकरार से रूह भी आमिल की तरफ मुतवज्जे हो जाती है, और फिर आमिल जब चाहे जिस रूह को मुखातिब कर सकता है। ये तो बहुत आसान है, मैंने खुश होकर कहा। लेकिन रूह से किस तरह काम लिया जा सकता है, मैंने पूछा। रूह से रूह के जरिए ही काम लिया जा सकता है, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जभी तो मैंने तुमसे एक बार कहा था कि अपनी रूह को पाक कर लो ताकि दूसरी रूह पर हुक्म चला सको, तो क्या अभी भी मेरी रूह पाक नहीं हुई? मैंने झिझकते हुए पूछा। नहीं, ये बात नहीं।
وہ میرا خدشہ سن کر زور سے ہنسی. اب تو ٹھیک راستے پہ چل رہے ہو, اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا. یہی وجہ ہے آج میں تمہارے دل میں برسوں کے چھپے ہوئے تجسس کے بارے میں بتا رہی ہوں. یاد رکھو. حسب عادت انگلی اٹھا کر بولی. جسم گوشت کا مادہ ہوتا ہے, لہذا اس کی حرکات محدود ہوتی ہیں, جبکہ روح نہایت لطیف اور ہلکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی حرکات لامحدود ہوتی ہیں. وہ ایسے کام انجام دے لیتی ہے جو کہ جسم انجام نہیں دے سکتا, اور عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے. اتنا کہہ کر مستانی نے تکیے پر سر اس طرح رکھ دیا جیسے وہ تھک گئی ہو. میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولی. یہ تو ان روحوں کی بات تھی جو طبعی طور سے جسم کے ناکارہ ہونے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں, لیکن اگر کوئی روح جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی اپنے رب سے ناطہ جوڑ لے تو. اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے پوچھا. اگر ایسا ہے تو روح سب سے زیادہ عظیم طاقتور ہوگی. ایسی روحیں جو جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی حق تعالیٰ سے ناطہ جوڑ لیتی ہیں تمام قیود سے آزاد ہوتی ہیں. مستانی نے دوبارہ کہنا شروع کیا. زمین و مکان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے, وہ پلک جھپکتے میں کائنات کی وسعتوں کو پار کر لیتی ہیں. ایسی روحوں کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ منشاء الہی کے مطابق کام انجام دیتی ہیں. وہ روحیں اتنی پاک اور مقدس ہوتی ہیں. اس نے حیرت سے کہا. میں نے حیرت سے پوچھا. ہاں. مستانی نے میری حیرت پر مسکرا کر جواب دیا. وہ نفس سے پاک روحیں ہوتی ہیں. انہیں فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے. ایسی روحیں احکام الہی کی منتظر رہتی ہیں. انہیں عرش معلیٰ سے بغیر کسی وسیلے کے احکام ملتے رہتے ہیں. وہ منشاء الہی کے مطابق ہر کام انجام دیتی رہتی ہیں. یہ تم نے نہایت ہی عجیب بات بتائی. میں نے کہا. اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایسی روحوں کے جسم دنیا میں موجود رہتے ہیں. اس نے اس طرح سے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن وہ خود ذات الہی کے حضور میں سربا سجود احکام کے منتظر رہتے ہیں. کمال ہے. میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا. یعنی انسان چاہے تو زندگی میں ہی حق تعالیٰ سے ناطہ جوڑ سکتا ہے؟ بالکل. مستانی نے تائیدی لہجے میں کہا. انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا والے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اتنا کہہ کر اس نے میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا, پھر نہایت سنجیدگی سے بولی. اب یہ فیصلہ نہیں کرنا تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنی روح کو اس مادی اور فانی جسم سے جدا کر کے حق تعالیٰ سے ناطہ جوڑنا چاہتے ہو یا کسی بھٹکتی ہوئی روح کو قابو میں کرنا چاہتے ہو. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی. مجھے الجھن میں ڈال دیا. میرا فیصلہ. مستانی کی طبیعت عجیب نوعیت کی تھی. وہ گفتگو کا آغاز بلا سوچ سمجھے کر دیا کرتی تھی. خود موضوع کو ہی وہ بلا تکان بولے چلی جاتی تھی. اس کی نہایت ہی جامع مدلل ہوا کرتی تھی باتیں. مادیت سے لے کر روحانیت تک اس کے پاس علم کا بیش بہا خزانہ موجود تھا, لیکن اس کا طریقہ درس کچھ عجیب سا تھا. وہ اپنی بات کا آغاز کہیں سے بھی کر دیتی تھی, پھر مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہوئی مجھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بتا دیتی تھی جو میرے لیے فائدہ مند ہوتی تھی. حق اللہ اور اللہ سے لے کر اب تک میرا ساتھ یہی ہوتا آ رہا تھا. مستانی جب بھی بات کرتی بے مصرف نہیں ہوتی تھی, اور اس وقت تو میں نے موضوع ہی ایسا شروع کر رکھا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے شروع ہی سے جستجو تھی. لیکن اب اس نے موضوع کا تمام نچوڑ نکالنے کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا, اور نہایت ہی مشکل کام تھا. میرے سامنے اس نے روح کی دونوں حقیقتیں بیان کر دی تھیں. اب مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. میں خاموش تھا. مستانی بھی خاموش تھی. اسے پورے فیصلے
इसे मेरे फैसले का इंतजार था। इस तरह तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। चाय और पियोगे? इसने मुझे सोच में गुम देखा तो पूछा। इस तरह शायद तुम्हें फैसला करने में आसानी हो, इसने कहा, और मेरा जवाब पाने से पहले ही खाना पकाने वाले कोने की तरफ चली गई। मैंने बैठे बैठे गर्दन घुमाकर देखा। मेरा ख्याल था मस्तानी देर से बैठी मेरे साथ बातें कर रही थी, लिहाजा वो चूल्हा जलाएगी, लेकिन चूल्हा जल रहा था और इस पर रखी हुई केतली का पानी उबल रहा था। वहां पहले ही एक दूसरी मस्तानी बैठी चाय बनाने में मसरूफ थी, और फिर वो मस्तानी जो मेरे पास से उठकर गई थी, इस बैठी हुई मस्तानी कि जिसे मैं इस तरह समा गई, वो अब एक ही मालूम हो रही थी। मस्तानी का दूसरा वजूद मेरे लिए बाइस हैरत था। एक बार मुझे फिर इसी किस्म का मुशाहिदा हो चुका था। मस्तानी का पार्ट 7 सफ़ा नंबर 123 पर इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब आप पार्ट 8 सफ़ा नंबर 123 से समाअत फरमाइए।